Hi viewers, this is your Rajeshwar. Today I shall discuss about your topic gene cloning, gene cloning or cloning vectors. So first of all we are learning about the biotechnology. It is a very useful topic and it is a very easy topic. So once we can listen this topic carefully and we can remember we can read your notebook and we can easily understand it. If we cannot listen to the lesson and we can read to the book, we cannot understanding to the biotechnology, it is too difficulty. So that's why be carefully, we can show to the, we can listen to the biotechnology. So my dear students, you know that here today I shall discuss about your topic of gene cloning. So first of all that I will learning about the gene cloning definition. So here the gene cloning. So gene cloning, you know that here the clone, the word of the clone is a Greek word. So clone means knoll or twig. So clone means known or twig. So must be we are learning to this gene code. So in this gene code definition that I will discuss the gene code. Let we shall learn to the gene cloning definition. The production of exact copy means clones copy of a particular gene or DNA sequence using genetic engineering techniques. So genetic engineering techniques is also known as gene clone or cloned gene बोलते हैं. So that means क्या करना, a particular the production of a exact copy of a particular gene or DNA sequence is using by the genetic engineering techniques. So genetic engineering techniques के लिए हम लोगों क्या करना ना, we are selecting to the particular gene from the other organismal body. सो अदर ऑर्गेनिज्म बॉडी में क्या करना है, एक जीन सेलेक्ट करना चाहिए. वो जीन क्या करना है, इंसर्ट करके वो जीन क्या करना ना, कट करके अदर ऑर्गेनिज्म बॉडी में क्या कर रहा है, इंसेक्ट कर रहा है. सो दैट पर्टिकुलर जीन इज ऑल्सो नोन एज जीन क्लोनिंग. एंड सेकेंड पॉइंट देखिए, द डीएनए कंटेनिंग द टारगेट जीन, ऑलरेडी मैं बोल दिए, द डीएनए कंटेनिंग द टारगेट जीन is split into the fragments using by the restriction endonuclease. So यहाँ पर क्या करना है, डीएनए फॉर एग्जांपल कितना फ्रैगमेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल देखो हम लोगों को कितना फ्रैगमेंट चाहिए उतना कट करना चाहिए. फॉर एग्जांपल हम लोगों को दिस इज ए जीन, सो दिस वन जीन है. सो वो जीन में क्या करना ना, कितना फ्रैगमेंट चाहिए देखो. सो कितना फ्रैगमेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल वो जीन में देखो. सो दिस इज ए जीन, वो जीन में कितना फ्रैगमेंट चाहिए देखिए. दिस वन जीन में देखो कितना फ्रैगमेंट चाहिए आप लोगों का. सो फॉर एग्जांपल वो जीन में इतना फ्रैगमेंट चाहिए तो क्या करना ना, सो इतना फ्रैगमेंट क्या कर रहे हैं हम लोगों कट कर रहे हैं. सो कट करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, एंडोन्यूक्लियो रेडक्टेज एंजाइम यूज़ कर रहे हैं हम लोग. सो विच एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, एंडोन्यूक्लियो रेडक्टेज. So here the endonuclear reductase enzyme is used to cut to the gene. So वो कट करने के लिए endonuclear reductase enzyme यूज कर रहे हैं. These fragment are then inserted into the cloning vector. These fragment are inserted into the cloning vector. So which transfer the recombinant DNA to suitable host cell. So recombinant DNA to suitable host cell. So this one के लिए आप लोगों को लिखना चाहिए. And next one क्या करना है, inside the host cell recombinant DNA undergoes the replication. Thus the bacterial host cell will give rise to a clone of cell containing the cloned target gene. So for example देखो, so this is a gene.
सो दिस वन जीन है. सो दिस वन जीन क्या कर रहे हैं ना, सो दिस इज अ टारगेट जीन. सो वो टारगेट जीन क्या करना है, इतना टाइप ऑफ द टारगेट जीन हम लोगों कट किए. सो कट करने के बाद वो जीन क्या कर रहे हैं ना, अनदर वन एंजाइम आर देयर, दिस इज फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल. सो वो बैक्टीरियल सेल में क्या करना है, यहाँ पर वो इतना शेप में क्या करना, कट कर रहे हैं. वो कट करने के लिए क्या यूज किया, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज किया. सो यूज करने के बाद क्या करना ना, वो जीन कट किए, यहाँ पर कट किया वो जीन. सो वो जीन यहाँ पर कट करने के बाद क्या कर रहा है ना, वो जीन कट किया. सो वो जीन कट करने के बाद वो जीन इतना पीस ऑफ द जीन, दिस वन पीस ऑफ द जीन. सो दिस वन पीस ऑफ द जीन क्या कर रहा है ना, यहाँ पर इंसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इंसेक्ट कर रहा है. सो यहाँ पर इंसेक्ट करने के बाद क्या करना ना, यहाँ पर वो जीन क्या करना ना, रिकम्बिनेंट कर रही वो जीन यहाँ पर. सो यहाँ पर रिकम्बिनेंट कर रही वो जीन. सो दैट मतलब क्या करना, दिस जीन इज इंसेक्टेड इनटू द क्लोनड वेक्टर. सो दिस इज ए बैक्टीरिया. सो दिस बैक्टीरिया इज अ क्लोनड वेक्टर. वो क्लोनड वेक्टर में क्या करना ना, ये वो फ्रेगमेंट क्या करना ना, वी आर सेलेक्टेड टू द फ्रेगमेंट, दैट सेलेक्टेड टू द फ्रेगमेंट इज इंसेक्टेड टू द क्लोनड वेक्टर. सो क्लोनड वेक्टर में इंसेक्ट करने के बाद क्या करना, विच ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेशन डीएनए टू द सूटेबल होस्ट सेल. सो बाद में क्या करना, दिस वन ना रिकॉम्बिनेंट कर रहे हैं. सो रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या करना, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन. सो रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या है, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करिए. री मतलब अगेन, कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, कॉम्बिनेट कर रहे. सो दैट मतलब क्या करना ना, रिकॉम्बिनेट मतलब क्या करना ना, टू जीन्स. सो टू जीन्स physically associated or linked on a chromosome is also called as recombinant. So यहाँ पर क्या करना, वन जीन आर देयर. सो दिस वन जीन क्या करना, यहाँ पर क्या करना, इंसेक्ट किया. सो इंसर्ट करने के बाद क्या करना, यार द जीन्स इज कंटेनिंग टू द कोडॉन्स. सो 2000 दी कोडन क्या करना, वो जीन में फॉर एग्जांपल यहाँ पर जीन लाया, वो जीन में क्या करना, वो कोडन फॉर्मेशन करके नया जीन वो बन गया. यहाँ पर वो नया जीन क्या करना ना, होस्ट सेल में हम लोग रख दिया, हम लोग रख रहे. सो दैट मतलब क्या करना ना, इस मेथड के लिए हम लोग क्लोनिंग जीन यूज कर रहे हैं. सो क्लोनिंग जीन यूज करे तो क्या करना, नया प्रोडक्टिविटी वी कैन गेट टू द न्यू प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द क्लोनिंग मेथड बाय द यूजिंग ऑफ द क्लोनिंग मेथड. सो वो वाला आप लोगों को मस्ट भी अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए. एंड नेक्स्ट वन देखिए. सो दिस वन जीन में क्या करना ना, सो दिस वन क्लोनिंग जीन में देखो हम लोगों को, वो क्लोनिंग जीन में नेक्स्ट वन क्या कर रहे हैं, लेट आई विल डिस्कस यू क्लोनड जीन में. Gene cloning significance. So we are observing to the gene cloning significance. So first point, a particular gene can be isolated and its nucleotide sequence determined. So for example, a particular gene क्या करना, can be isolated. First isolate करना चाहिए. So isolate करके we can determine to the nucleotides. वो जीन में क्या क्या न्यूक्लियोटाइड्स है हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं. सो न्यूक्लियोटाइड मीन्स आप लोगों को पता है, पहले क्लास में मैं बोल दिया. सो वो न्यूक्लियोटाइड्स हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं. सो दिस वन में. एंड सेकेंड वन क्या करना, द कंट्रोल सीक्वेंस ऑफ द डीएनए कैन बी आइडेंटिफाइड. सो यहाँ पर क्या करना ना, वो क्लोनड डीएनए में फर्स्ट से सेकेंड वन सिग्निफिकेंट क्या करना ना, सो डीएनए सीक्वेंस कंट्रोल करने के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि डीएनए सीक्वेंस से कंट्रोल कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन बेस पेयर से ATGC एंड अगेन क्या करना है, ATGC. सो 2000 नाइट्रोजन बेस पेयर से, वो नाइट्रोजन बेस पेयर में हम लोगों को क्या करना, ओनली दिस वन नाइट्रोजन बेस पेयर कंट्रोल करना चाहिए. सो दिस वन नाइट्रोजन बेस पर कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, वी कैन इजीली कंट्रोल्ड. सो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, वो नाइट्रोजन बेस पर कंट्रोल करने के लिए बाय द यूजिंग ऑफ द क्लोनिंग मेथड, क्लोनिंग टेक्निक्स यूज करके हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट वन देखो, दिस वन का बाद एंड दिस वन का बाद दिस वन कंट्रोल कर रहे हैं. दिस वन का बाद देखो, सो दिस वन का बाद क्या करना है ना, नेक्स्ट वन प्रोटीन एंड एंजाइम और RNA फंक्शन कैन बी investigated.
सो यहाँ पर क्या करना ना, प्रोटीन का फंक्शन क्लोनिंग जीन में हम लोग इजीली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, प्रोटीन का फंक्शन क्या होगा ना, एंजाइम का फंक्शन क्या होगा ना, आरएनए फंक्शन कैसा होगा ना, सो इन्वेस्ट करना के लिए इजी हो गया। एंड थर्ड वन क्या करना, म्यूटेशन कैन बी आइडेंटिफाइड, यहाँ पर वो जीन में कहाँ पर म्यूटेशन कर रहा है, सो की नाइट्रोजन बेस पेयर में म्यूटेशन कर रहा है, सो कहाँ पर विच न्यूक्लियोटाइड इज म्यूटेटेड हियर, सो यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या करना ना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ पर ब्रेक डाउन होगा, सो हम लोग में आइडेंटिफाई करने के लिए वो म्यूटेट जीन ईजी होगा। एंड नेक्स्ट वन क्या करना, ऑर्गेनिज्म कैन बी इंजीनियर्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पजेस, सो यहाँ पर क्लोनिंग जीन यूज करके क्या करना ना, स्पेसिफिक पर्पज में क्या करना यूज कर रहा है ऑर्गेनिज्म, वो हम लोग अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन, हिस्ट्री ऑफ द क्लोनिंग जीन, लेट वी विल डिस्कस टू द हिस्ट्री ऑफ द जीन क्लोनिंग। सो हिस्ट्री में फर्स्ट वन आप लोग हम देखिए, जॉर्ज ग्रेगर मेंडल क्या करना, 19th सेंचुरी का बिफोर कोइंसाइड द टर्म जीन फॉर द रिप्लेस टू द फैक्टर्स, सो फैक्टर्स वो बोल दिए जॉर्ज ग्रेगर मेंडल, वो फैक्टर यूज करके क्या करना, ही इज गिवन टू द इनहेरिटेंस ऑफ द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जॉर्ज ग्रेगर मेंडल। आफ्टर क्या करना, 19th सेंचुरी के बाद क्या कर रहे ना, 1903 में Sutton proposed that the genes residues of the chromosomes, so Sutton and Bavaria first chromosomal theory is प्रोवाइड किया, आप लोगों को पता है Sutton and Bavaria 1902, यहाँ पर 3 दे दिया वो रॉन्ग है, 1902 में क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ द मैकेनिज्म दे दिया Sutton and Bavaria। आफ्टर क्या करना ना, 1922 में जीन मैपिंग किया टीएच मॉर्गन 1922 में क्या दे दिया, जीन मैपिंग, वो जीन्स कैसा होगा, एक्स क्रोमोजोम में वो जीन कैसा होगा, वाई क्रोमोजोम में जीन कैसा होगा, उसका मैपिंग बोल दिया टीएच मॉर्गन। सो टीएच मॉर्गन के बाद 1944 में क्या करना ना, एवेरी एंड मैक्लॉयड एंड मैककर्ट, in 1953 Hershey and Chase, so those were explained to the molecular nature of the gene to be deoxyribonucleic acid molecular nature, वो लोग हम क्या करना है एक्सपेरिमेंटल मेथड में यूज किया, आप लोगों को पता है, सो R1 स्ट्राइट S स्ट्राइट का न्यूक्लिक एसिड वो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, उसके लिए क्या करने एक्सपेरिमेंट किया वो सभी लोग हम, सो आरवे एंड मैककर्टी एंड हर्शी, सो 2000 एक्सप्लेन टू द सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, आप लोग डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए वो लोग हम क्या करना ना वो कर दिए। एंड नेक्स्ट वन 1952 to 1966, the structure of DNA genetic code, the structure of DNA and genetic code and the process of the transcription and the translation identified in 1952 and 1966। 1952 1966 में क्या करना ना, जेबी वाटसन एंड क्रिक, वो क्रिक क्या करना जेनेटिक कोड आइडेंटिफाई किया, एंड वाटसन क्या कर रहा ना, वाटसन इज ऑल्सो आइडेंटिफाई किया ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस ट्रांसलेशन प्रोसेस आइडेंटिफाई करने के लिए 1952 वो लोग हम वो कर दिया। एंड नेक्स्ट वन 1971 to 73, सो न्यू टेक्नोलॉजी का कर दिया, रिकम्बिनेशन टेक्नोलॉजी वो यूज़ किया उसी टाइम में। एंड 1985 में क्या करना, कैरी मुल्लर्स इन्वेस्टिगेटेड बाय द पॉलीमर्स ऑफ द चेन रिएक्शन, पीसीआर चेन रिएक्शन इन्वेस्टिगेट किया 1903 में। सो 2000 दी इंट्रोडक्शन आप लोग हम मस्ट भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट वी शैल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट क्लोनड जीन, वी कैन शो दिस इमेज। सो फर्स्ट क्लोनड जीन experimentally done by Boyer and Cohen. So Boyer and Cohen both are the scientists is first experimentally proved to the first cloning experiment. So वो cloning experiment में क्या करना, फर्स्ट वन Boyer and Cohen फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करना, यहाँ पर क्लोनिंग जीन्स वो यूज़ किया, आप लोग हम अंडरस्टैंडिंग करिए। यहाँ पर देखो दिस वन क्लोनिंग जीन है यूको R1 and PSG 101
and the यहाँ पर देखो TSG 1010 and E को R1, so those are the genes क्या करना है इंसेक्ट कर रहा है. सो दैट मतलब आप लोग हम देखिए दिस वन है, दिस वन प्लास्मिड है, वो प्लास्मिड में क्या करना वो कट किया वो जीन यूज करके विच जीन ई को R1 यूज करके देखो यहाँ पर वो डाट है, सो वहाँ पर ये डाट है, सो कट कर दिए यहाँ पर, कट करके यहाँ पर क्या करना वो जीन कट कर दिए. सो कट करके क्या कर रहा है ना वो जीन यहाँ पर रखा दिया, वो जीन यहाँ पर रखने के बाद क्या करना वो रिकॉम्बिनेशन हो गया वो जीन. सो टोटल क्या करना है रिकॉम्बिनेशन हो गया, दैट इज ए फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द जीन. कौन ऑब्जर्व किया ना ई को बॉयर एंड कोहेंस ऑब्जर्व किया, मस्ट भी वो अंडरस्टैंडिंग करिए. एंड नेक्स्ट वन देखो, सो नेक्स्ट वन क्या करना है क्लोनिंग वेक्टर्स. यू नो दैट माय डियर स्टूडेंट्स इट इज वेरी वेरी यूजफुल क्लोनिंग वेक्टर. सो वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर, सो वेक्टर मतलब ट्रांसमिट कर रहे. सो वो ट्रांसमिट कैसे कर रहे क्लोनिंग वेक्टर, नहीं तो क्या करना ना वो जीन हो ट्रांसमिट नहीं है. सो क्लोनिंग कर रहे जीन हो, वो जीन ट्रांसमिट करने के लिए क्या चाहिए ना वेक्टर चाहिए. सो लेट वी शैल डिस्कस टू द क्लोनिंग वेक्टर. सो हियर द क्लोनिंग वेक्टर देखिए इट इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द जीन क्लोनिंग प्रोसेस. सो क्लोनिंग वेक्टर इज ए सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द जीन क्लोनिंग प्रोसेस. सो जीन क्लोनिंग प्रोसेस का क्लोनिंग वेक्टर हो वन सेंट्रल कॉम्पोनेंट एंड नेक्स्ट वन क्या करना ना ए स्मॉल पीस ऑफ डीएनए इनटू विच ए फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी इंसर्टेड. सो फॉर एग्जांपल देखिए ए स्मॉल पीस ऑफ डीएनए इनटू विच ए फॉरेन डीएनए मतलब क्या करना ना सो वन अदर ऑर्गेनिज्म डीएनए, so DNA can be inserted. so small DNA में क्या अदर ऑर्गेनिज्म DNA इंसर्ट करने के लिए so क्लोनिंग वेक्टर होना चाहिए. एंड नेक्स्ट वन क्या करना दिस इंसर्शन ऑफ द फ्रेगमेंट इज कैरीड बाय ए treating the vector and the foreign DNA with the restriction enzyme that create the same overhang then ligase this fragment together. So first of all क्या कर रहे हैं ना यहाँ पर the insertion of the fragment is carried. वेक्टर क्या करना ना वेक्टर इंसर्शन ऑफ द फ्रेगमेंट कैरी कर रहा है. सो कैरी करना टाइम में क्या करना ना उसका फास्ट क्या करना है डीएनए विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसी टाइम में क्या करना है डीएनए विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया. सो जाने के बाद क्या कर रहा है ना यहाँ पर वो वेक्टर का डीएनए वहाँ पर फिक्स करना चाहिए. सो फिक्स करने के लिए क्या करना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करना वहाँ पर कट कर रहा है. सो कितना डीएनए मॉलिक्यूल लेके गया वहाँ पर देखो. फॉर एग्जाम्पल देखिए आप लोग हम. सो दिस वन देखो दिस इज ए वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल. सो इन दिस वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल में देखिए वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल. सो वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल में क्या करना है इतना क्लोनिंग डीएनए इतना इंसर्शन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल कैरी कर रहे कौन है वेक्टर कैरी कर रहे. कैरी करने के बाद क्या करना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अनदर फॉरेन डीएनए आर देयर. सो वो फॉरेन डीएनए में वो टाइप क्या करना रखना चाहिए. सो इंसर्ट करना चाहिए. सो इंसर्ट करने के लिए पहले क्या करना ना रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पर. सो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करना इतना टाइप क्या कर रहा है कट कर रहा है इतना साइज. सो इतना साइज का जीन क्या करना है यहाँ पर कैरी कर रहा है वेक्टर. वो कैरी करने के बाद वेक्टर क्या करना ना वो जीन यहाँ पर जीन देखो. सो दिस वन जीन क्या करना है यहाँ पर इंसेक्ट कर रहा है. सो इंसेक्ट करने के बाद क्या करना दिस वन डीएनए दिस इज होस्ट सेल ऑफ द डीएनए. होस्ट सेल ऑफ द डीएनए क्या करना है अगेन रिकॉम्बिनेंट कर रहे हैं. सो रिकॉम्बिनेंट करने के लिए क्या करना ना इंसेक्ट ऑफ द डीएनए यहाँ पर बाइंडिंग करने के लिए वन एंजाइम यूज कर रहे हैं दैट इज ए लाइगेज एंजाइम. सो लाइगेज एंजाइम क्या करना सीलिंग ऑफ द लाइगेटिंग एंजाइम क्या कर रहा है ना सीलिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. बट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या कर रहा है ना कटिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. आप लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए. सो नहीं तो अंडरस्टैंडिंग नहीं तो आपको कुछ भी पता नहीं होता है. आप लोग हम अंडरस्टैंडिंग करिए. नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर. सो हियर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर.
So in this cloning vector is containing to the sum of the characteristics. First one characteristics number one ORI, ORI, ORI. So ORI means क्या करना है origin of replication. ORI मतलब already मैं पहले बोल दी. And next one क्या करना है another one character selectable marker gene. So first of all selectable marker gene. So selectable marker gene is very very important. And next one क्या करना है restriction site. रिस्ट्रिक्शन साइट वो कैरेक्टर होना चाहिए. एंड थर्ड वन क्या करना है मल्टीपल क्लोनिंग साइट MCS मल्टीपल क्लोनिंग साइट. एंड फोर्थ वन क्या कर रहा है ना मल्टीपल कॉपीज. एंड फिफ्थ वन लेस देन 10 KB in size. For example, those are the characters must be very very important for this cloning vector. So here the cloning vector we are observing to this cloning vector. First one ORI. ORI means original of the replication. So original of the replication, it is a specific sequence of nucleotide from where the replication starts. So it is a ORI. So ORI means we are observing here. This is a one circular DNA. In the circular DNA is containing to this area. So this area को क्या बोलता है ना ORI. ORI मतलब क्या करना है let we shall start to the replication starting point. So that मतलब क्या करना है replication starting point मतलब क्या करना है यहाँ पर वो DNA में क्या फॉर्म कर रहा है प्रोमोटर फॉर्म कर रहा है. सो प्रोमोटर फॉर्म करने के बाद क्या कर रहा है ना यहाँ पर प्रोमोटर फॉर्म कर रहा है. सो वो प्रोमोटर रीजन में क्या करना स्टार्ट कर रहा है रिप्लिकेशन पोर्शन स्टार्ट कर रहा है. इन दिस एरिया इज ऑल्सो नाउन एज ORI बोलते हैं. वो एरिया को क्या बोलते हैं ना ORI. कीप इट योर माइंड. सो इन दिस ORI एरिया के ORI बोलते हैं. एंड अनदर वन क्या करना है इट शुड हैव सेलेक्टेबल मार्कर जीन. सो इन दिस एंजाइम में क्या करना सेलेक्टेबल मार्कर जीन हम लोग सेलेक्ट करना चाहिए. एंड नेक्स्ट वन क्या करना ना यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइट एंड मल्टीपल क्लोनिंग साइट. सो बोथ आर यूजफुल टू द क्लोनिंग कैरेक्टर. सो आप लोगों को वो करना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर के बारे में. एंड नेक्स्ट वन देखो. सो दिस इज ए ORI. सो ORI मतलब क्या करना ओरिजिनल रिप्लिकेशन. सो ओरिजिनल रिप्लिकेशन मतलब अलाउ द वेक्टर एज वेल एज द फॉरेन DNA टू एम्प्लीफाइज इन द होस्ट सेल. सो दैट इज ए ORI. ORI में क्या करना ना अलाउ कर रहा है which one allow कर रहा है allow the vector as well as the foreign DNA amplifying host cell. and next one क्या करना selector marker gene. so selector marker gene मतलब क्या करना ना antibiotic restriction gene allow this host cell grow on the selective media can selectively amplify this specific vector in the होस्ट सेल. सो होस्ट सेल में क्या करना ना दिस वन सेलेक्टिव मार्कर्स मस्ट भी सेलेक्ट करना चाहिए. सो यहाँ पर सेलेक्टिव मार्कर्स क्या क्या वो सभी क्या करना ना सेलेक्टिव मार्कर्स है. वो वाला देखो EcoRI CALI HindB. सो सभी क्या करना सेलेक्टिव मार्कर्स है. वो सेलेक्टिव मार्कर्स क्या करना ना वो सेलेक्ट करने के लिए यूज कर रहे. एंड अनदर वन क्या करना ना नेक्स्ट वन मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स allow the insertion of the foreign gene DNA. so multiple cloning site में क्या करना foreign DNA insert करने के लिए वो यूज कर रहा है. आप लोगों ने वो आइडेंटिफाई करिए. so next one let we shall discuss about the another one types of the cloning vector. it is very very important. types of the cloning vector they allow the exogenous DNA to be inserted short and multiple mainly at the DNA level. so exogenous मतलब outside of the DNA क्या करना insert करने के लिए वो क्या चाहिए ना cloning vector चाहिए. so in this cloning vector so 6 types of the cloning vectors is available in our environmental condition and laboratory condition. so here the 6 types of the cloning vector. first one plasmid vector and the second one first one plasmid vector and the second one bacteriophage vector and the third one cosmid vector. fourth one phase lambda vector.
phase lambda vector, and fifth one cosmid vector, and sixth one bacterial artificial cloning and yeast artificial cloning vectors. So must be useful to the cloning vectors. So in this one by one, we shall discuss to the cloning vector types. So देखिए this one first one plasmid vector. So my dear students, we are learning about to the cloning vector. So first one vector, plasmid vector. So plasmid vector are a double standard. So plasmid vector are a double standard and extra chromosomal DNA molecule. Extra chromosomal DNA molecule and circular and self-replication of the vector. So that matlab kya karna, this is a plasmid vector for example. So this is a circular DNA is containing to the plasmid vector. So here the plasmid vector, we are observing to this plasmid vector. So here the plasmid vector के advantage क्या क्या है? So plasmid vector are a double standard vector, this one. So this is not a single standard. So double standard of the vector. So this one plasmid vector is having the bacteria is containing to the plasmid vector. So in this plasmid vector is a double standard of the DNA vector, and as well as here the double standard of the DNA vector is a small and easy handleable of the plasmid vector, first one. And the second one easy purification of this vector. So purification करना के लिए easy हो गया. And the next one क्या करना है, straightforward selection of the stages. So forward selection करना के लिए easy हो गया. And the next one useful for the cloning, small DNA fragments, only 10 kbp. So 10 किलोबाइट्स प्लाज्मा नाइट्रोजन बेस पर क्या कर रहा है ना, क्लोनिंग करना के लिए प्लाज्मड वेक्टर वेरी यूजफुल है. बट एक यहाँ पर वो प्लाज्मड वेक्टर में सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस आर देयर. सो लेस यूजफुल फॉर द क्लोनिंग लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट. सो यहाँ पर क्या करना, लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए तो वो प्लाज्मड वेक्टर यूज नहीं है. ओनली स्मॉल डीएनए चाहिए तो क्या करना, प्लाज्मड वेक्टर वो यूज होगा. आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए वो प्लाज्मड वेक्टर के लिए. एंड नेक्स्ट वन क्या करना ना, प्लाज्मड वेक्टर फॉर क्लोनिंग. डिस्कस अबाउट प्लाज्मड वेक्टर फॉर क्लोनिंग. सो प्लाज्मड वेक्टर में क्लोनिंग कैसे कर रहे हैं. सो पॉइंट नंबर 1, कंटेन an origin of the replication. First one, plasmid vector में it will contain to the origin of the replication, allowing for the replication independent for the host genome. होस्ट जीनोम में क्या करना, वो रिप्लिकेशन इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट करना के लिए वो क्लोनिंग वेक्टर यूज होगा. नेक्स्ट वन क्या करना ना, हियर द कंटेन सेलेक्टिव मार्कर जीन्स. प्लाज्मिड वेक्टर में सेलेक्टिव मार्कर जीन्स आर देयर. The selection of cells containing a plasmid. So this one marker genes में क्या कर रहा है ना, plasmid vector contain हो. And the next one क्या करना ना, twin antibiotic restriction and blue and white screening. So twin antibiotic restriction and blue and white is also containing to the plasmid vector. And the next one multiple cloning site is containing to the plasmid vector. And the next one क्या करना, easy to be isolated from the host cell, and plasmid vector arranging into the side 1.0 kb to 250 kb. For example, PUC8 and is the 2.1 kb, and as well as this one enzyme PUC8 is plasmid vector enzyme, and another one TOL is 117 kb of the size of the enzyme is also having to the plasmid vector. So next one here the plasmid vector में that we shall discuss to the another one type of the plasmid vector. So देखिए, so in this plasmid vector is having the PBR322. It is very important to the PBR322. So here the PBR322. So my dear students, आप लोग हम देखिए वो PBR322. So PBR322 is a very important. So PBR322 it was one of the first vector to be developed in 1977. So this one best
vector PBR322. So here the PBR322 vector matlab kya hai? So we shall discuss. Here the PB indicated to the plasmid, BR indicated to the Bolivar and Rodriguez. So Bolivar and Rodriguez. So here the Bolivar and Rodriguez is two scientists. Two scientists is first identified to the first identified to the vector, plasmid vector. So this one 22 is a distinction for this other plasmid product in the same laboratory. So that मतलब क्या करना वो दो साइंटिस्ट है बोलीवर एंड रोड्रिग्स दो साइंटिस्ट क्या करना मोर टाइम एक्सपेरिमेंट किया वो प्लास्मिड वेक्टर के लिए. सो कितना टाइम ना 322 टाइम डिस्टिंग्विश किया. सो डिस्टिंग्विश करना के बाद क्या करना लैबोरेटरी में वो वाला आइडेंटिफाई किया PBR322 and PBR325 and PBR327 and PBR328. सो सभी प्लास्मिड वेक्टर्स वो लोग हम आइडेंटिफाई किया. एंड एज वेल एज वो लोग क्या कर रहे ना इट इज 4,363 base pairs in the size. So here the plasmid vector में कितना नाइट्रोजन बेस पेयर्स है 4,363 नाइट्रोजन बेस पेयर्स in size and less than to the 10 kb is containing to this plasmid vector. And the next one क्या करना it carries 2 sets of antibiotic restriction genes. So this one plasmid vector PBR22 carry to the antibiotic restriction genes. How many? 2 sets of the antibiotic restriction genes क्या करना carry कर रहे. For example, either the amplification or tetracycline. So both are देखिए. So 2 sets amplification and tetracycline. So can be used as a selectable markers. So this one and this both are कहीं की यूज कर रहे हैं ना सेलेक्टेबल मार्कर के लिए यूज कर रहे हैं. वो सेलेक्टेबल मार्कर के लिए कहाँ पर वो मिल गए ना वो प्लास्मिड वेक्टर में मिल गए. सो दैट मतलब क्या करनी यार द PBR322 vector is carried to the 2 sets of the antibiotics. So 2 sets of the antibiotics and restriction genes. So 2 sets of the antibiotics, first one antibiotic tetracycline antibiotic and the second one amplification antibiotics. Both are carried by the which one PBR322 plasmid vector. Keep it your mind this one. And next one point देखिए each of the marker gene carries unique restriction site and insert of the DNA and into these site inactivated the specific marker site. So यहाँ पर क्या करना each of the marker gene carries to the unique restriction.